पूरा मुल्क को पता है कि क्रिकेट कैसे होनी चाहिए और कैसे चलानी चाहिए और कैसे खेलनी चाहिए. एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन. तो वो तो यू आंसरेबल टू द एंटायर कंट्री. टीम बेच रहे थे और हमारे पास 8 बिडर थे. सो वो बाय दैट टाइम वो चेंज हो गया था, बट वो इनिशियल रिस्क तो उनका था. और फिर वो बिल्कुल आप समझें कि तब भी जब उन्होंने ख़रीद भी ली तो फिर ना होते होते फिर ये रहेगी. Mr. Najim Sethi was the chairman then. So at that time, I applied for the position. Welcome to Khayali Dialogue. हमारी आज की गेस्ट PCB में PSL की लीग कमिश्नर हैं. इनसे गप्स लगाएंगे. इनका नाम है मिस नाइला भट्टी. हेलो. Assalamu alaikum. Hello. वेलकम जी. Thank you for having me. Thank you for being here. सबसे पहले ये बताएं कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप करें, आप क्या बनना चाहती थी और यहाँ किस तरह पहुँची? I don't think so कि कोई मेरे उस ज़माने में when we were growing up there was any such कोई particular they had any path for me except कि जी अच्छी तरह पढ़ें लिखें और बस शादी हो जाए. I think तब तो यही होता था ज़्यादातर. And then that is what happened. Yeah. But normally those time बस BA किया, शादी की, हाँ, बच्चे यही किए. So how did you get into working and then becoming CEOs of various companies? So I just, I think everything was, I mean, nothing was planned. Everything just happened by chance. I think my life, it was by chance. So I wanted to do something, बच्चे once they were school going. तो था कि भी कुछ करें, घर बैठे क्या हो रहा है. अच्छा, शुरू में आपने काफ़ी साल you were just a housewife. हाँ, पहले Okay. तो मैं I wasn't working. When the kids were 5-6 years old, तो बंदा वो भी स्कूल जा रहे थे. मैं भी कह रही हूँ. तो the first thing उस ज़माने में जो होता था कि आप टीचर बन जाए, तो जो कि मैं बनी. ग्रामर स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया. क्या पढ़ाया आपने? Various class 7 में I was okay. teaching, I was the class teacher. एंड वो पढ़ा रही थी. फिर थोड़े अरसे बाद कोई सीनियर क्लासेस में भी पढ़ाना शुरू कर दिया. सो वेरियस सब्जेक्ट्स. या एंड दैट वाज. Were you a strict teacher? I was maybe a strict teacher, but I was very friendly teacher. I mean, अभी भी मेरे स्टूडेंट्स मेरी पुरानी मुझे मिलती हैं, तो they were more like friends, So from a teacher, how did you get into the corporate world? So that again a big chance. Summer holidays थी स्कूल की. आपको पता है 2-3 महीने की छुट्टियां होती हैं. So I had gone to visit a friend who by chance they had a cousin who was living with them from Karachi, and he at that time was living with them and had just started the Levi's sourcing office. Okay. In Pakistan. In Pakistan. Yeah, so I met him at her house, and he was putting together a team, and he asked me, why don't you join us? And at that time, the textile industry was just growing in Pakistan. Amar Textile had just opened. The others, there was about Amar ही ज़्यादा बड़ा था, बाकी कोई इतनी फैक्ट्रीज नहीं लगी हुई थी. तो मैंने उनको कहा कि जी मुझे तो कुछ नहीं पता इसका टेक्सटाइल्स का. उसने कहा नहीं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है. तो वाई डोंट यू, मैंने कहा आई एम टीचिंग. इसे जो छुट्टियाँ हैं जब तक, वाई डोंट यू कम एंड ट्राई इट आउट. सो आई वेंट टू द ऑफिस, आई ट्राइड इट आउट, आई लव्ड इट, एंड ही वॉज अ फैबुलस बॉस, मिस्टर असफर हसन. ही टुडे हैज़ अ वेरी लार्ज बाइंग हाउस. तो wonderful person, wonderful boss, and the entire team, we were a small team, but जितने भी लोग थे, they were very, it was more like a small family, and it was an exciting time because ये लाहौर की textile industry अभी शुरू हो रही थी. One factory after the other was opening up. So I think that is, we started doing that, and from that I think the other thing of course was that Levi's as a company globally, they believe in a lot of training and actually trying to better their employees in every possible way. So I think that opportunity was great because they would send you to Singapore, they would send you to the head office in San Francisco for trainings and all that. And at that time, that was not, the done thing in Pakistan. So it was a very good environment. And
So that from there, joined Levi's, got into the textile industry, and फिर one factory after the other was opening. It was a great time for youngsters in Pakistan at that time. Also, a lot of young people joining the industry in various ways, and so yeah, that's how I got into the corporate world, into basically textiles. And then how? When did you left the textile industry? I think I was there for quite some time in Levi's, and then uh, we decided, my husband and myself decided to open up our own factory. Okay. तो फिर हमने अपनी फैक्ट्री खोल ली. तो फिर लीवाइस छोड़ के फिर भी टेक्सटाइल्स में ही थे, doing the same thing, but got into the other side of it. Instead of the sourcing side, we got into the manufacturing side, and then had our own factory and started manufacturing knitwear, Okay. working with some very good brands, and that itself was also very again a new beginning, new learning, something very exciting, because when you're setting up something, it is a very exciting time. So then got into that, into the manufacturing side of it. उसके बाद आप एक टेलीकॉम कंपनी में भी आपने काम किया एज अ जनरल मैनेजर. हाँ, फिर उसके बाद I think what happened was 9/11 happened, and it was a big shock to the Pakistan knit textile industry, because naturally वो जो भी वहाँ हो रहा था, Sanctions और वो पाकिस्तान पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था. Buyers stopped coming to Pakistan. बड़ा कुछ चेंज हो गया एकदम से, एंड थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हुई. Factories started downsizing, closing. In my case, at that time, I decided that, it's okay. I can, maybe take some time off and not work, because the factory didn't need so much. My husband was working there, so I stepped back. And then for a few months, didn't really do anything. And then I think, again, completely by chance, met Mr. Salman Taseer at a social gathering, and he asked me, what are you doing? And I said, nothing. And he said, well, I would like to open up a kids TV channel. और उनका एक मैगज़ीन निकलता था डेली टाइम्स के साथ, विकेड के नाम से मैगज़ीन होता था. तो उन्होंने कहा मैंने उसी नाम का चैनल भी खोलना है. So why don't you come and look at that? Again, I said I know nothing about the industry. Again, he said it's not rocket science. Anybody can, you have to learn. At that time, Business Plus unka already chal raha tha. So he said, why don't you come and see if you can do it? So again, something new and something exciting, and I said, okay, I'll try it out. And I joined him, and again I was very lucky that Mr. Taseer was a wonderful boss. He believed in empowering his employees. He gave you responsibility, but he also gave you all the tools to deliver. He was not a micromanager at all. And so we launched Wikkid Plus in about a record 10 months, and it was a great success. The programming was appreciated, the schools appreciated it, the kids loved it, I think the parents loved it, and we got a very, very good response from Wikkid Plus. तो उसमें कंटेंट लोकल बनाते थे? सारा लोकल कंटेंट था. बहुत कम हमने कुछ इंटरनेशनल कंटेंट लिया था, बट दैट वाज जस्ट maybe half an hour or 1 hour of the entire day's contents. The programming actually was quite groundbreaking. I invited Mr. Derek O'Brien from India, who used to do the Bonvita quiz contest. He did it for more than 25 or 30 years in India. And we asked him to come and do a quiz show in Pakistan, and he came. And we did Mind Grind. The program was called Mind Grind, and we got children from all the schools, and it was very exciting. We did 3 seasons of that. We did a program with Mr. Adil Hashmi. We did a all over Pakistan में travel show. We revived all the Sohail Rana songs that we had grown up with. जो PTV के गाने हम सुनते थे, वो गाने दोबारा गाए, बच्चों से गवाए. Just a lot of stuff that we did.
अभी कोई भी चैनल नहीं है आई थिंक बच्चों के लिए नहीं, अब और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है। और वो मेरा बड़ा पेन पॉइंट है कि हमारे अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आई वुड लव फॉर देम टू वॉच प्रोग्राम्स दैट आर इंट्रिंसिकली पाकिस्तानी। तो क्योंकि हमारा अपना एक यूनिक कल्चर है, हमारी अपनी एक Exactly. यूनिक हिस्ट्री है, और वो हम नहीं दिखाते। हमारे बच्चे डिपेंडेंट हैं, या हॉलीवुड मतलब see all वेस्ट the के गाने time they देखें are या on. इंडिया को देख लें, Yeah. तो देयर इज नथिंग Pakistani Yeah. for them. And I think that is why I sincerely believe that is why our children are quite confused. They are They really don't know what it means to be a Pakistani. very true. उनको नहीं समझ आती कि हम बड़े क्लियर थे, हमें पता था। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग वो ऑब्जर्वेशन, connection खत्म हो गया एक जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी मिस्टर डेरेक ओब्रायन की। उन्होंने जब पहला सीज़न किया तो उन्होंने मुझे कहा कि नाइला, व्हेन आई आस्क the kids questions on Pakistan, they don't know the answers. And when I ask them questions about the rest of the world, उनको सब पता होता है। और कहते हैं इंडिया में ये ऑपोजिट है। कहते हैं इन द Bonvita quiz contest, when all the children who come, any question that I will ask about India, they will know the answer. अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी जर्नी पीसीबी में कैसे हुई, एंड देन how were you involved and how did the PSL come into being? PCB, again, I wasn't doing anything at that time. I had again taken a break from work, and there was an opportunity at the PCB in their marketing department. Mr. Najim Sethi was the chairman then. So at that time, I applied for the position and got the job. And at that time, PSL की बातें शुरू हो गई थी। अपेरेंटली 1-2 साल से कोशिश कर रही थी पीसीबी करने की, समथिंग और द अदर वुड हैपन, और वो होता नहीं ये था। आइडिया किसने फ्लोट किया था पीएसएल का, कोई पता आपको? नॉट रियली, आई थिंक कि Was mutual? चला आ रहा था सलमान सरवर हाँ जी, आई थिंक सलमान सरवर बट का भी इनिशिएटिव था ये। तो आई थिंक सलमान वॉज हायर्ड एज अ कंसल्टेंट बाय द प्रीवियस रिजीम, और फिर वो हो नहीं सका था, फिर वो भी छोड़ के चले गए। फिर व्हेन आई हैड जॉइंड, तो आई थिंक सलमान दोबारा से, आई थिंक सलमान ब्रॉट दिस अप, सलमान सरवर बट, एंड जो उस वक़्त के चेयरमैन थे शरियार खान साहब, एंड मिस्टर सेठी वाज एट दैट टाइम द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये करना चाहिए एंड वी शुड एक्सप्लोर इफ़ वी कैन डू इट। उस वक़्त फिर मैं थी वहाँ, और वो जो टीम थी सारी, उन्होंने कहा कि वी शुड, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगस्ट विद इन पीसीबी के जी हमारे जो लड़के थे बाय दैट टाइम, दे हैड बीन बैंड फ्रॉम प्लेइंग द आईपीएल। मतलब नॉट बैंड, बट दे वर नॉट प्लेइंग, वहाँ जाते नहीं थे, उनको कोई Select नहीं सेलेक्ट करते। ही नहीं होता था, वो ड्राफ्ट में डाला। हाँ, Because they were Pakistani, that was the sole reason. Of course, that was the only reason. तो फिर वो एक जज्बा था कि जी दिन हम अपनी कर लेते हैं। तो वो फिर इसलिए वी डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई एंड डू इट, एंड वेल अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू डू इट। उस वक्त और एक और प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो जो चैलेंज था वो ये था कि पाकिस्तान में तो हम करा ही नहीं सकते। क्या पाकिस्तानी लीग एक मुल्क से बाहर हो सकेगी, कोई इतनी एक्साइटमेंट होगी, वहाँ कोई फ़ैन फॉलोइंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती उस टाइम। तो खैर वी डिसाइडेड टू एटलीस्ट ट्राई एंड सी कि हमने कंसल्टेंट्स हायर किए, उन्होंने व्हाटएवर उनके साथ मिला के देन वी डिसाइडेड कि लेट्स टेक अ चांस। उसमें जो आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट जहाँ पीसीबी को जाता है, वहाँ बहुत बड़ा क्रेडिट उन 5 इनिशियल फ्रेंचाइज ओनर्स को जाता है, जिन्होंने हु टुक द प्लंज। बिकॉज देखें उस वक़्त कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बाहर होना है या तो होनी भी नहीं है। तो आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि तो वो गोल्डन हो गई जी। अब वो उनको तो नहीं उस वक्त पता था ना, आई नो, बट उस वक्त तो नहीं उनको, उस वक्त तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क था। सबसे पहले किसने ली थी टीम? नहीं, दे वर ऑल टुगेदर, पांचों एक ही दिन बिकी थी। तो वो इट वाज अ बिग रिस्क फॉर देम। आप देखें ना कि हम 5 टीमें बेच रहे थे और हमारे पास सिर्फ 6 बिडर थे,
और ऑन दी अदर हैंड जब हमने 2 साल बाद मुल्तान बेची तो एक टीम बेच रहे थे और हमारे पास 8 बिडर थे. Wow. सो वो बाय दैट टाइम It वो grew. चेंज हो गया था, बट वो इनिशियल रिस्क तो उनका था. और फिर वो बिल्कुल आप समझें कि तब भी जब उन्होंने ख़रीद भी ली तो फिर ना होते होते फिर ये रहेगी कि हमें कोई ब्रॉडकास्टर अच्छे पैसे नहीं दे रहा था. और पहले 2-3 साल आई थिंक सब टीम्स को लॉस हुआ. ऑफ कोर्स लॉस हुआ. तो और तो ब्रॉडकास्टर नहीं था कोई जो पैसे देता. Brands तो वगैरह को भी issue होगा. फिर हमने एक इनोवेटिव तरीका अपनाया और एक कोई एजेंसीज को ब्रॉडकास्ट राइट्स बेची एंड ऑल यू नो. सो दे weren't too many believers initially and there were very few believers, but जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यू नो इसमें अपनी बिलीव शो की. एक और हमारे स्पॉन्सर हैं ट्रांस ग्रुप हैं, वो हमारे ग्राउंड स्पॉन्सर्स पीसीबी के साथ बड़े अरसे से हैं, बट इसके लिए ज़ाहिर है दे हाँ उन्होंने भी कहा कि जी हम यू नो वी विल सपोर्ट इट. तो आई थिंक कि ये जो शुरू के जो लोग थे जिन्होंने सबने उसमें काम किया, सपोर्ट किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हुई, लेकिन इट वाज आई मीन देन ऑफ कोर्स यू नो इट वाज अ सक्सेस. बैक हियर टू पाकिस्तान, ये आई थिंक शेठी साहब का क्रेडिट. हाँ जी, ये भी बड़ा सेकंड ईयर में आई थिंक बहुत बड़ा था. हम फाइनल लेके आए थे वापस, बहुत बड़ा चैलेंज था. लेकिन अगेन इसमें मैं कहूँगी कि कुछ जो फाइनलिस्ट थे उस वक्त के, उनके जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, इवन इफ़ वी ना भी हमारे बड़े प्लेयर्स आए, हम कोई और ले लेंगे और हम यू नो हम इसको लेके जाएंगे. तो वो भी हुआ. एंड फिर थर्ड ईयर आई थिंक 3-4 मैचेस वापस आए, एंड देन यू नो इस तरह स्लोली द इंटायर. एंड लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट टाइम कि 4 शहरों में हुआ. तो दैट वाज इस बार कितने शहरों में? 4 में ही हो रहा है. हाँ 4 में ही है. कोई नई टीम अब और ऐड अप होगी जी आने वाले टाइम में, 1-2 साल में? आई थिंक अभी इमीडिएटली तो नहीं, बट आई थिंक जब ये 10 साल पूरे, मे बी आफ्टर द 10th ईयर. हाँ, 10 साल के बाद हाँ शायद जी, add up हाँ जी होनी बिल्कुल. आई एनीथिंग ऑफ कोर्स वी शुड लेट्स सी मैनेजमेंट क्या सोचती है, बट है तो सही आइडिया कि करनी तो चाहिए हमें. इंटरेस्ट बहुत है लोगों से, तो फिर इंशाल्लाह वो भी करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मेड PSL हैपन. एंड जो पाकिस्तान इनको वापस लाने का जो था कि PSL शुड कम बैक, इसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक सपोर्ट जो भी उस टाइम की गवर्नमेंट होती थी उनका भी था. गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटेशन थी, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, to make it a success. So everybody had a hand in it, and what is good about it that everybody takes ownership of it. You see, it's a Pakistani brand. It has become so big, and the good thing about it that everybody wants to help to make it a success, to make it happen, to make it a success. Whether it is you know any small thing. I mean, you know, I have so many incidents that I can recall. Please tell us. I mean, for example, last year एक चीज़ हुई कि हमने अपनी किट जो थी वो कराची से इस्लामाबाद लानी, पिंडी लानी थी, और वो बाय रोड आनी थी, लेकिन हमें लास्ट मिनट पे सिक्योरिटी और कुछ जो थी उन्होंने बताया कि जी ये तो बाय द टाइम ये किट यहाँ से निकलेगी और पिंडी पहुँचेगी, ये जो आपने टाइम दिया हुआ इसमें नहीं पहुँचने लगी बाय रोड. तो आई मीन देयर वाज पैनिक कि जी मैच शुरू होना है और एक दिन पहले तो कुछ समझना है क्या करें. तो उस वक़्त हमने दिमाग में आया, रिक्वेस्ट की हमने एयर चीफ को, और उन्होंने हमें C-130 और हमारी किट आ गई. यू नो आई मीन it was really you know nice of everybody to you know give us that kind of help and support. एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वेदर इट इज़ PSL और एनीथिंग, अब एक दफ़ा आपको याद होगा कि यहाँ आई एम फॉरगेटिंग किसके साथ मैच था, लाहौर में बारिश हो गई तो हेलीकॉप्टर आ गए ड्राई करने के लिए पिच को. आर्मी के हेलीकॉप्टर थे और लोकल सिविल एविएशन के हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर थे, वो आ गए, उन्होंने दे दिए. और वो पायलट्स ने जिस तरह वो बिल्कुल ज़मीन के पास खड़े होके और वो पंखे चलाए हेलीकॉप्टर, जिससे वो सूख गया और मैच हो गया, वरना मैच नहीं होना था. सो आई मीन वो उनकी द एफर्ट ऑफ द पायलट्स, द एफर्ट ऑफ द यू नो अथॉरिटीज़ हु सेंट दोज हेलीकॉप्टर, इट वाज जस्ट अमेजिंग रियली. क्रिकेट के लिए सब लोग एफर्ट कर लेते हैं. बिल्कुल करते हैं. सलमान भी देखें क्रिकेट के लिए एफर्ट कर रहे हैं. हाँ आई हर्ड. हाँ
अच्छा, So, तो आपकी इन योर डेली लाइफ अब तो बिकॉज ये PSL चल पड़ा है एंड इट्स अ बिग थिंग नाउ एंड एवरीवन's looking forward to it, तो what are the challenges, some of the challenges that you face like almost on a daily basis with PSL? बस आई थिंक एक तो थोड़ा सा चैलेंज आई थिंक पिछले 2-3 साल में ये रहा है कि बड़ी रैपिडली मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुई है पीसीबी की, तो वो नेचुरली इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। नया नए लोग नया हेड्स आते हैं, उनको एक्सप्लेन करना, बाय द टाइम उनको समझ आए वो फिर कोई चेंज होने लग पड़े, तो दैट इज़ अ चैलेंज। बट अदरवाइज आई थिंक पीएसएल इट्सेल्फ जब हो रहा होता है तो पूरी इट इज़ नॉट ओनली पीएसएल की तो टीम बहुत छोटी है, इट इज़ द इंटायर पीसीबी, वेदर कराची स्टेडियम के लोग हैं या पिंडी के हैं या मुल्तान के हैं और यहाँ लाहौर के हैं, और सारे डिपार्टमेंट्स, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट दैट इज़ देयर, दे पिच इन, एंड पूरा जो एक लेट्स से कि इट इज़ लाइक everybody is involved and everybody has to put in their best effort and they do, regardless ना कोई दिन देखता है ना रात देखता है, और you know everybody works, there's no Saturday, there's no Sunday, everybody's just working day and night, and I think it's for everybody it's a sense of achievement to have a successful tournament. अभी जो आपने मेन चैलेंज की बात की है, उस पर थोड़ा ब्रीफली और आप बता सकती हैं कि आई मीन दिस मस्ट बी वेरी difficult for you guys to be in a flow of working, and then each time you guys have a new chairman almost every 6 months. So like how do you guys चले hopefully आगे ये change हो जाए, hopefully there will be some stability now. चले जी, उम्मीद करते हैं हम। Being a female, because इस हायरार्की में बड़ी कम खवातीन होती हैं, तो मोस्टली जो है इट्स मेंस वर्ल्ड, सो उसमें आपको कभी पीसीबी में या इन जनरली लाइफ में जब मेरे से ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं इन ऑल माई वर्किंग लाइफ, तो मैंने तो ये नोट किया है, आई मीन दिस मे बी ओनली माई एक्सपीरियंस एंड आई डोंट वांट टू से दैट दिस इज़ अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट बीइंग अ वुमन हैज़ बीन टू माई एडवांटेज, बिकॉज आई हैव सीन दैट आई गेट मोर रिस्पेक्ट, more cooperation, more, you know, I mean, people are willing to facilitate me and go out of the way, because एक certain हमारे culture में I think एक values हैं जहाँ वो एक औरत को एक ज़्यादा respect देते हैं, या अगर वो एक मेरी जगह कोई मर्द हो उसको वो उनको गुस्सा भी चढ़े या कुछ कहना भी चाहें तो वो इधर अवॉइड कर लेते हैं कि चलें कोई बात नहीं, you know, we'll get it done. So I've never felt any kind of discrimination of any sort, or any other kind of you know issue has never arisen. हमारे अब तो वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में रेशियोज काफ़ी बेहतर हो गई हैं दोनों जेंडर्स की, तो पीसीबी में क्या रेशियो है? पीसीबी में हैं काफ़ी ख़वातीन हैं एंड इन गुड लीडिंग पोजीशंस हैं, 15% ऑफ द आई एग्जैक्टली वुडंट से, बट हाँ इतनी तो हैं in good positions in every department, and by the way there is absolutely no discrimination. If a job opening comes up and there's a woman who is better qualified, and she will get the job. I mean, that is one thing that is very good about the organization. तो कोई वुमेन टीम या कोई वुमेन टीम की पीएसएल लीग वगैरह? विमेन टीम की लास्ट ईयर हमने 3 मैचेस कराए थे विच वर एग्जीबिशन मैचेस विद इन द पीएसएल हमने कराए थे। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमारे पास टाइम पिछले साल से कम है, 1 हफ़्ता। उसके एक तो रमज़ान जल्दी शुरू हो रहा है इसी विंडो में, फिर इलेक्शंस क्योंकि 8 को हैं, पहले हम 7-8 को हम टूर्नामेंट शुरू कर देते थे, इस दफ़ा वी हैव टू वेट फॉर द इलेक्शंस टू हैपन एंड देन उसके 2-3 दिन बाद यू नो वो सपोर्ट पीरियड वगैरह शुरू हो रहा है, तो वो 1 हफ़्ता हमारा थोड़ा कम है। इसलिए इस दफ़ा प्लान था कि विमेन की अगेन एग्जीबिशन कराएं, एंड देन देर इज़ ऑफ कोर्स इन द प्लान तो बिल्कुल हैव टू हैव अ विमेन PSL काइंड ऑफ टूर्नामेंट, इंशाल्लाह वी प्लान ऑन डूइंग इट। अच्छा, ये बताएं कि डिफरेंट जो PSL की टीम्स हैं वो तो यंगस्टर्स के लिए बहुत कुछ कर रही हैं क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, क्या PCB व्हाट इज़ PCB डूइंग, और जो यंगस्टर्स हैं अगर वो क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ द पाथवेज, उनके लिए क्या पाथवेज हैं?
एक तो ये कि पीसीबी का तो रोल ही क्रिकेट को प्रमोट करना है सो द क्वेश्चन कि वो क्या कर रहे हैं वो तो कर ही ये रहे हैं. दैट इज़ द मेन रोल ऑफ पीसीबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट क्रिकेट इन पाकिस्तान एट ऑल लेवल्स. एंड इतना मुझे आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट साइड ऑफ इट, लेकिन इतना मुझे पता है कि हर लेवल पे कैंप्स होते हैं, अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19. अंडर 19 की तो टीम्स भी हैं. फिर विमेन के लिए भी ये सारा सेम पाथवेज फॉर द विमेन, क्लब क्रिकेट है. एंड आई थिंक जो हमारे रीजन्स हैं, एसोसिएशंस हैं, मतलब आई एम नॉट दैट क्यूड इन टू ऑल दोज थिंग्स, बट देयर इज़ अ प्रॉपर पाथवे that is there for kids to get into cricket who want to. और डोमेस्टिक इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, और वो पूरी जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम है वो ये सारा कुछ हैंडल करती है. जो तो आई थिंक बहुत कुछ होता है. एंड आई थिंक स्कूल क्रिकेट भी बीच में शुरू हुआ था, एंड आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट दैट ट्यून, बट आई थिंक देर इज़ एट द स्कूल लेवल ऑल्सो एंड समथिंग कॉल्ड पाथवे क्रिकेट, एंड so both for girls and boys. So that is actually वो जो टीवी पे नज़र आता है वो तो आपको हमारी जो मेन टीम्स होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं. और बट हाउ वो जो पूरा प्रोसेस है जो सारे साल हो रहा होता है एट एवरी लेवल, एट एवरी इन एवरी रीजन, एंड जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी वो तो हर लेवल पे हो रही थी, क्योंकि दैट एक्चुअली इज़ द मेन वर्क एंड दैट इज़ द मेन जॉब ऑफ द पीसीबी. हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त ही हो रही होती है. हाँ, देयर समथिंग और बीइंग द कॉर्पोरेट साइड ऑफ द पीसीबी, आपके जब चेयरमैन एक क्रिकेटर होता है और जब एक नॉन क्रिकेटर होता है, तो किसके साथ काम करना ज़्यादा आपको आसान होता है? मैंने तो किसी क्रिकेटर के साथ एक्चुअली नहीं किया. आई वाज नॉट इन पीसीबी व्हेन मिस्टर रमीज राजा वाज द चेयरमैन. तो मैंने तो नॉन क्रिकेटर्स, मैंने मानी साहब के साथ भी किया है, सेठी साहब के साथ भी किया है, और ये अभी ज़कास साहब थे, इनके साथ भी किया है. तो हर किसी का, जैसे हर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक तरीका होता है काम करने का. नेचुरली हर एवरीबडी इज़ डिफरेंट, they work in a different way, and you adapt to work like that. अगर आप चेयरमैन होते हैं, what kind of changes would you bring into the PCB? I can't imagine, because it's a very tough job. Let me tell you this, because I think कि जितनी स्क्रूटनी एक पीसीबी के चेयरमैन की होती है, और जितने सवाल और जवाब, एंड प्लस पूरा मुल्क को पता है कि क्रिकेट कैसे होनी चाहिए और कैसे चलानी चाहिए और कैसे खेलनी चाहिए. एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन. तो वो तो यू आंसरेबल टू द एंटायर कंट्री. इतनी पैशनेट है. तो आई you don't want the job. I don't want the job. It is I think it is one of the most difficult jobs. I really think so, because everything is criticized. Everything is You're under the gun. Under scrutiny all the time. I think it's a very tough. It must be one of the toughest jobs actually to be the chairman of PCB. लेकिन आप इतनी देर से आप पीसीबी में भी हैं और आप सारा ये समझती हैं, क्या आप चेंजेस लाना चाहेंगे जिससे आपके ख्याल से कि पीसीबी को भी फ़ायदा हो, प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो, और हमारे मुल्क को भी, लोगों को भी फ़ायदा हो? I think like every other organization, it needs to keep evolving as an organization. वो तो हर organization का ये होता है, keeping up with the latest trends, whether it is how to the systems, whether it is training of your HR, whether it is organizational structures, आप क्या क्या उसमें changes ला सकते हैं to make it better and more. But I think the biggest thing that I feel here is young people need to be in positions of where they can contribute. I think it's very important, क्योंकि youngsters जब आते हैं, they bring a new energy, they bring a new perspective, they bring, और आजकल तो जो young लोग हैं वो जब पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नए नए तरीका पढ़ रहे हैं करने के, फिर उनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है टू बी ट्रूथफुल. सो आई थिंक देयर शुड बी अ कांस्टेंट इंडक्शन ऑफ यंग पीपल in the non-cricketing side also, which is with the whatever else side, in the corporate side also. I think that is important. तो कॉर्पोरेट साइड पर जो मोस्टली जॉब्स होती हैं जी, ये क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं, या इट्स लाइक इसका कोई टाइम फ्रेम होता है? हर किस्म की हैं. आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती हैं, परमानेंट भी होती हैं. हाँ जी, हर किस्म की होती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज़. तो ये इसी तरह द मिक्स होता है. सो नए लोगों के आने का चांस हर वक्त है. हर वक्त है. और
पोजीशंस निकल रही होती हैं, और आई वुड इनकरेज यंग पीपल टू अप्लाई ऑल्सो. एंड आई थिंक मोर देन दैट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो अब एक साइंस हो गई है. सो आई थिंक यंग पीपल नीड टू स्टडी इट ऑल्सो. इट शुड बी अ सब्जेक्ट इन स्कूल, इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, बिकॉज एक तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अब हैं, एंड होपफुली क्रिकेट के अलावा भी इन अदर स्पोर्ट्स आई थिंक अब थोड़ा गवर्नमेंट की है भी, फोकस भी है. आई हेयर कि फुटबॉल वाले भी कुछ कर रहे हैं, सुनती रहती हूँ बाकी स्पोर्ट्स में. तो जैसे जैसे प्रोफेशनल यंग लोग उन स्पोर्ट्स में आएंगे तो वो स्पोर्ट्स भी दे कैन बिकम बेटर, एंड तो आपस में बोर्ड्स का या फेडरेशंस का जो मुख्तलिफ खेलों की हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन रहता है, कोई इंटरेक्शन रहता है इन रूटीन में, या सब अपना अपना खेल देख अपना रहे ही हैं कर बस? रहे हैं? क्योंकि आई थिंक जैसे जो फुटबॉल एसोसिएशन है, इट रिपोर्ट्स टू फीफा, पीसीबी आईसीसी के नीचे आती है, हॉकी फेडरेशन के अपने होंगे. एक है ओवरऑल, देयर इज़ पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री फेडरल लेवल पे है, आईपीसी मिनिस्ट्री, जिसके नीचे ये सारे स्पोर्ट्स आती है. और फिर आई थिंक एवरी प्रोविंस हैज़ अ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, वो भी है. बट इतनी कोई आई थिंक विद इन द क्रॉस स्पोर्ट्स इतनी मैंने नहीं देखी कोई, अदर देन क्रिकेट. हाँ. आपके ख्याल से what are some of the plans for PCB, some of the future plans जो आप देखती हो, जो आप देख सकती हो कि जो PCB को करना चाहिए आई थिंक या जो कर रहे हैं? मेरी डोमेन में जो चीज़ें आती हैं, सिंस आई एम लुकिंग आफ्टर लीग्स एंड ऑल, आई थिंक अभी तो ऑन द कार्ड्स जो मुझे नज़र आता है वो maybe expansion of the PSL, and then addition of women, a women league. ये दो चीज़ें तो हैं हमारी horizon पे जो कि इंशाल्लाह hopefully we can do. And as far as the other PCB plans are concerned, I'm not really very privy to those because I'm not involved in that side of it. वुमेन लीग में आप लोगों की कोई है रिसर्च ऐसी कि उसमें बिडर्स आएंगे क्या, लोग इसी तरह टीम? बहुत इंटरेस्ट है. Actually, there is a tremendous amount of interest. ओके. तो जब भी ये Already अनाउंस है. होगी तो उसमें भी बिडर्स आएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा. एक अंडर 19 भी आप लोग स्टार्ट कर रहे थे लीग नहीं, आई PJL थिंक के वो नाम हुई से? थी, तब मैं नहीं थी, बट एक हुई थी PJL, एंड उसका आई थिंक कोई इतना मे बी आई डोंट नो, इट डिडंट कंटिन्यू, सो आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज वो बिफोर आई केम हुई थी और फिर बंद भी हो गई, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट So अब हैपेंड. कोई plans नहीं है उस तरह की for the young people to have for the under आई 19? थिंक PSL में ऑलरेडी एक कैटेगरी है ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स, और एक कि वो होने चाहिए, तो वो उसी Rising में, star. हाँ, राइजिंग स्टार, वो उसी में उसको उसमें आ जाते हैं. उसी में आ फिट जाते कर देते हैं. स्टेडियम कोई नए बन रहे हैं जी कहीं? आई थिंक एक इस्लामाबाद में प्लान है गवर्नमेंट का ऑफ स्टेडियम, एंड मैंने सुना है कि कराची बहरिया टाउन में भी एक बन रहा है. आई डोंट नो वो कहाँ तक पहुँचे हैं. लेकिन स्टेडियम बनाना ये दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ पीसीबी, ये गवर्नमेंट का काम है. ये गवर्नमेंट PCB अभी भी जो हमारे स्टेडियम है, आई थिंक वो मोर और लेस, आई थिंक दे आर लीज्ड और समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट ही होती है, गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट पीसीबी बनाती के है, हवाले PCB, कर हाँ, देती है. हाँ. ये जो स्टेडियम का नाम है गद्दाफी स्टेडियम, इसको अगर अब क्योंकि वो गद्दाफी साहब भी चले गए और इतना कुछ हिस्ट्री इज चेंज्ड एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड, मे बी दैट नेम इजंट द मोस्ट सूटेबल नेम. तो अगर ये चेंज करना हो तो ये कैसे चेंज होगा? हु इज गोना हैव टू साइन अ पिटिशन एंड हु हैज टू डिसाइड? I have You no have idea. no idea. चलें Absolutely इस no. पॉडकास्ट से हम at least we can put this question out there. Actually a very old stadium, so I think for the sake of record keeping and all that stuff, it might be difficult. लेकिन अब दुनिया भी तो बदल गई है ना, and the kind of end he had was not really the best of ends, and it wasn't very graceful. I mean, that's a political thing. I normally don't, but I don't think that was his fault. हाँ, That but he had this end. I mean, So, well, I mean, my political views are very different. I'd rather not Yeah, speak I about also them. disagree with this. I don't mind because they're all dead, so I have nothing to worry about. It's like history, man. Like it's a lot of matches there, a lot of games. और इसका एक और पता प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखा है? Nobody knows the spelling. Everyone spells
कोई गजाफी लिखता है, कोई गद्दाफी लिखता है, कोई कजाफी लिखता है. नहीं, Everyone हम has तो their एक ही own. तरीके से लिखते हैं बट नहीं, बट आप अखबारों में भी देखें, कभी कजाफी लिखा वो होता है अखबार क्यू वालों का से, कसूर है ना. कभी कोई गद्दाफी लिखता है, कोई डबल डी से लिखता है. So it's always but that is their interesting. job. They need to know exactly how it is spelled. लाहौर में बेशुमार ग्राउंड्स हैं क्रिकेट की गेम खेलने के लिए, लेकिन लाइट्स नहीं होती उनमें. लाइक कराची में इवन जो एक एरिया का भी जो ग्राउंड है क्रिकेट का, वहाँ पर लाइट्स होती हैं रात को खेलने के लिए. आई थिंक वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का. हम इधर मॉडल टाउन के ग्राउंड्स में हैं लाइट्स, कुछ में लाइट्स हैं, कुछ में नहीं है. माय पॉइंट. तो इसमें पीसीबी नहीं कोई अपना रोल प्ले कर सकता कि आई डोंट थिंक सो कि वो कोई प्राइवेट. आई डोंट थिंक दैट इज नॉट द इन मैंडेट. प्राइवेट, द जनरल गवर्नमेंट ग्राउंड्स, देयर आर लॉट ऑफ ग्राउंड्स फॉर बट वो गवर्नमेंट के हैं ना, तो वो आई डोंट थिंक पीसीबी का ये मैंडेट है कि वो गवर्नमेंट के उधर लाइटें लगा दे या कुछ करे. ये तो गवर्नमेंट करे ना. That is their job. There is a lot of there are sports boards and they need to do it. तो वो ग्राउंड्स भी या तो पीसीबी के पास होने चाहिए. So I maybe think they कुछ can हैं manage. पीसीबी की जो actually I'm not very that much into how this is run, because that's not my job and I don't really get involved in that. So I'm not very sure of it. तो कितना आप लोगों का मार्केटिंग बजट होता है एक साल का विद द आई थिंक दैट प्योरली, एक तो पीसीबी की मार्केटिंग मैं नहीं देखती, बट वो डिपेंड करता है कि कितनी सीरीज हैं, सीरीज टू सीरीज. अगर कोई सीरीज है तो उसकी मार्केटिंग है, अगर नहीं है तो नहीं है. डिपेंड्स. अब पिछले 2 साल तो बहुत सीरीज हुई हैं. अब कमिंग आई थिंक इस साल में 2 हैं या 3 हैं. मतलब आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ कमिंग, इंग्लैंड इज़ कमिंग, बांग्लादेश इज़ कमिंग. सो वो हर सीरीज़ का सेपरेट बजट, डिपेंडिंग कितने मैच हैं, कितने शहरों में हैं, वो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट ऑल. आपके ख्याल से कोई हम किसी तरह, बिकॉज हमारी टीम काफ़ी सालों से hasn't been able to achieve any major trophies. So do you have any suggestions, any ideas on how we can improve our cricket team? वो तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान का एक शहरी के I पास know. आइडियाज़ हैं और उनके पास सजेशंस हैं टू हाउ टू इम्प्रूव. वो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ क्रिकेट लवर मेरे पास भी होंगी, बट दैट्स नॉट माई रोल इन द पीसीबी. आर यू क्रिकेट लवर? Yeah, I enjoy cricket and I want Pakistan to win. I mean, I that's definitely there, but I'm not a fanatic. But do you go to the ground to watch the game sometimes? वो कई दफ़ा तो inadvertently I'm there and I'm watching, but if for example if I was not at PCB and somebody told me कि आप को फलाना मैच हो रहा है, तो unless it was something that I was really interested in, I don't think कि मैं I'd like to watch it on TV, I think. Are there any books that have influenced you along the way, that have changed your perspective on life and how you do things? Actually, I read a lot of fiction, and I've always, but my choice of fiction is suspense, spy, thriller. That's what I read, and I read growing up. But something that somebody that influenced me was this gentleman called Simon Sinek, and he's a speaker and a trainer and a motivational speaker. And I think one thing that I heard, I watched a video of his where he's explaining that why you do something is very important. So know your why. I think that, and that got me to thinking that why am I doing what I'm doing? And I think that is very important for everybody, to know that why. You should know your why, because when you know your why and your why is strong enough, then then a lot of other things just fall into place, and you are in a better position to, I think, achieve your goals, because you are very clear that why you're doing it. But if you're not sure why you're doing it, you're not happy doing it, then I think you need to first find why you do something, and what is it that you want to do and why you want to do it, and then decide how you want to lead your life. I think so. एक saying भी है कि a person who knows his why can endure almost anyhow. Yeah, a very nice saying, and I think that's true, because if you're very clear about your motivation for what you're doing, then it doesn't matter the hurdles and the problems, because problems or hurdles तो हर चीज़ में है. But some of them you find unbearable because you're not really interested in the outcome. But if you're very interested in the outcome of it, then you would... and the obstacle becomes the way sometimes. Sometimes, yeah.
So that is true. You know, and as Steve Jobs said, don't settle. Don't settle. So you know, Stay naive, yeah, stay and curious. stay curious, and you know, do what you love doing, because if you love what you're doing, then it's not a job anymore. आई थिंक ये मैसेज हमारे माशरे को ज़रा ज़्यादा ज़रूरी देना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे माशरे के लोग वो बस चाहते हैं कि उनको एक मिल जाए written sort of what they're supposed to do in life and not take chances. And especially women, उनको बता दिया जाता है कि तुमने बस शादी करनी है और घर बसाना है, and that's it. So ज़रा कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? आई थिंक वैसे ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं है, ये अब आप पूरे एशियन में देख लें, वेदर दिस जापानीज और द चाइनीज और अस और इंडियंस और हुएवर, देयर इज दिस होल कल्चर के यू नो इस पाथ पे चलना है, और फिर ये डॉक्टर इंजीनियर पहले तो होता था, ये बन जाए, अब फिर टीचर बन जाए, यू नो देयर वाज ऑल दीज सेट पाथवेज फॉर एवरीबडी. बट आई थिंक अब ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया. यू सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स डूइंग व्हाट they like doing, what they want to do. Even in Pakistan, you know, that there's a whole world opened up because of social media also, and the technology that is available. So I think things are changing now even here, and it is not necessarily कि आप you know ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपने MBA कर लेना है या ये कर लेना है तो आपको आप बैंक में चले जाएंगे और मैनेजर बन जाएंगे. It's not that, it's changing. So I think it has already changed to quite an extent. And but as I say, one should always and I know but sometimes, you know, it's easier said than done. हमने तो कह दिया भाई do your why, find out, do what you love. But लोगों की बड़ी ज़्यादा कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ limitations होती हैं. There are people who are providing for their families, they are responsible for their families, and then they're doing whatever they're doing to the best of their ability. And I think लेकिन उसमें भी you know, then again you find out your why you're doing it, so it becomes more bearable. And then you find a way around it, and then do something. But it's sometimes ये cliches होते हैं, कहना आसान होता है, but जो लोग they're going through it and they're doing it, for them it's difficult. Very true. Yeah. Chalaji, thank you so much for being on our podcast and being our guest. No, it was a pleasure. Thank you for having me. Thank you so much. Okay. Ladies and gentlemen, thank you for watching our podcast. Please subscribe, like, and share our videos. Till next time, goodbye.